Great evening, my dear friends. Thank you so much for clicking on these videos, and I hope you are understanding that what I'm doing here and why I'm here. My dear friends, right now you are thinking that today what will I talk and what will I say here? Because I know very well every day and every time you watch these videos, and I know very well if you are giving your time here, it means you want to learn something different and something new. So today definitely I'll tell you something different and something different knowledge. And this knowledge will relate to your life, your daily life, which is you will use on your life. Just because if I know very well from where I have come here and how did I struggle in my life. So right now, not I'm alone. Here are my students with whom I'm going to talk, and I'm going to teach them something, and definitely they will also answer me. And at first, if you don't know about me, so I would like to tell about my introduction. This is Amit Tuddu. I'm a teacher in Future Coaching Center, Kedla Chopra Mode. Right now, I'm teaching in that coaching. As a teacher, I'm working. Basically, I live Tiratongri, but I belong to Jumra Pahar. And as well as beside the teaching, I'm also preparing the public speaking in English. And since 2 years, I'm doing this all. And after preparing, after completing, I'm here right now and I'm teaching you. And definitely, I'm giving you my best. Thank you so much. And right now, my student will talk here, and definitely I'll ask to them. अगर अपना नाम अगर उनको लिखने आता है तो मुझे लगता है अधिकतर लोग नाम भी इंग्लिश से लिखते हैं, मतलब अधिकतर लोग भी अपना नाम इंग्लिश से लिखते हैं. इट मीन्स they know what is the value of English. They know very well if I'll write English to my name, definitely who will see my name, he will think about me, he will think about me that wow, वो स्कूल नहीं गया फिर भी अपना जो हस्ताक्षर है, जो सिग्नेचर है, वो इंग्लिश से कर. This is very important to improve our English. And right now, we have to learn English, we have to speak English, and we have to talk in front of the people. You are right now learning English, yes? You are learning. It means nobody are knowing about you that she is learning or he is learning or not, I don't know. Because only you are learning and you are keeping in your mind. Are you getting? You are keeping in your mind. You are not doing spread your knowledge. You are not distributing your knowledge. You are not laying your knowledge. You are not talking with anyone. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके अलावा किसी को नहीं मालूम कि आप पापा को तो मालूम है कि जा तो रही है कि नहीं, कोचिंग जा तो रही है, बट सीख रही कि नहीं सीख रही है तो मालूम नहीं, ये तो खुद ही जानती है कि नहीं. अरगड़ेंगे ना. आपके पापा को भी पता है कि भाई बेटा तो कोचिंग तो जा ही रहा है, सीख रहा होगा ना, पर रियल में उनको नहीं मालूम कि वो सीख रहा है या फिर नहीं, जा तो रहा है, कॉपी में रख रहा है या फिर दिमाग में. आज कॉपी में लिखोगे, अगले साल ये कॉपी खत्म हो जाएगा, मतलब अगले साल क्या, अगले 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा, और फिर अलमारी पे रख दोगे कहीं बांध के, और एक दिन पॉपो वाला आएगा, पॉ पॉ, बोले कॉपी बेचो, किताब बेचो, और 10 रुपए में बेच दोगे तो वो खत्म हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे सेट करोगे, खत्म नहीं होगा कि नहीं. लेकिन हाँ, यहाँ पे भी रखना नहीं है. यहाँ पे रखोगे ना तो पागल हो जाओ. पता है दुनिया में सबसे ब्रिलियंट आदमी कौन है? जो सबसे ब्रिलियंट होता है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे रखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पागल. क्या बोलते हैं? पागल स्प्रेड नहीं करता. आप देखोगे एक पागल इंसान कभी लकड़ी को प्रणाम करेगा, कभी जमीन को प्रणाम करेगा, कभी दीवार को गाली दे देगा, कभी पता नहीं किसको, है कि नहीं, है कि नहीं. असल है कि नहीं. तो असल में वो लोग जो होते हैं ना, अपने ज्ञान को पहचान नहीं पाते. समझ में आ रहा है? उनके पास बहुत सारा ज्ञान है. एक दिन में, पूरा दिन भर में आपके पास पता है कितने थॉट आते हैं, कितने विचार आते हैं, कितने आते हैं एक दिन में? आपको भी मालूम नहीं होगा कितने विचार आते होंगे एक दिन में. आपके थॉट कितने आते होंगे? सोचो, पूरे 24 घंटे में 60,000 थॉट आते हैं आपके पास. कितना? आप बिलीव नहीं करते, 60,000 में सोच लेती हूँ, अरे वाह. हाँ, आप 60,000 सोच लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता. लेकिन जिस दिन अगर आपने 60,000 थॉट को पहचान लिया, देख लिया, उस दिन आप पागल हो जाओगे. क्योंकि जो पागल इंसान होता है ना, वो 60,000 थॉट को पूरा करना चाहता है.
ठीक है, साठों हजार थॉट को पूरा करना चाहता है। वो हम्बलनेस बनना चाहता है, वो सोचता है कि लकड़ी को भी प्रणाम करूं, अच्छा है। कभी सोचता है, नहीं ये बड़ा बुरा है, इसको गाली दे देता हूँ। तो जो थॉट आता है और वही एक्शन करता है, फीलिंग नहीं आती उनके अंदर में। और इन 60,000 थॉट में आप कौन सी थॉट को एक्शन पे लाते हो पता है? आप थॉट बहुत सारे लाते हो, 60,000 आपको पहचान में नहीं आता। उन 60,000 थॉट में कुछ थॉट जैसे आप सोचते हो, अंदर से एक फीलिंग आती, क्या आती? आप फील करते हो, ठीक है। अंदर से एक बार आपने सोचा यार पढ़ाई करनी है। क्या आपने जैसे सोचा पढ़ाई किया, तो सबको फीलिंग नहीं आती, कुछ लोगों को फीलिंग होता है यार एग्जाम में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो उठ के जाता है और किताब खोलता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके पास जो है फीलिंग आ गई। क्या? ऐसे तो लाखों लोगों के पास ये विचार आता है कि पढ़ाई करनी है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि फीलिंग नहीं आती। कभी आप पढ़ाई करेंगे, कभी आपके विचार आएंगे कि आज खेलेंगे, कभी आपके विचार आएंगे आज पार्क जाएंगे। जैसे बोला आपने पार्क जाएंगे तो फीलिंग आ गई, यार मेरे दोस्त आ रहे हैं, मजा आएगा, तो फिर पार्क के ऊपर जाएंगे आप। समझ में आ रहा है? तो जिसके ऊपर आपके फीलिंग आते हैं उस थॉट को आप कंप्लीटली पूरा करते हो। आर गेटिंग फीलिंग? फीलिंग का खेल है। जिसको आप फील करते हो ना, उस चीज को काम करने में आपको मजा भी आता है। वट यू फील, इफ यू वर्क दैट इज, यू विल फील गुड। फील करना जरूरी है, और फील करने के लिए पता है आपके माइंड को क्लियर होना जरूरी है कि जो चीज हमें फील हो रहा है वो हो क्यों रहा है। अरे वेडिंग सुनो, जब जब आपके दिल में इंग्लिश के बारे में कोई थॉट आता है तो फीलिंग आती है। सर में इंग्लिश का कोई फीलिंग नहीं आया, तो इसके लिए आप इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंग्लिश कभी लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। हाँ, अगर यदि आपको फीलिंग आ जाए ना, वाह इंग्लिश सीख जाएंगे, तो सोचो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के सर के साथ बात करेंगे। सोचो ना हमारे स्कूल में हम सबके साथ इंग्लिश में टॉक करेंगे, क्या बात है। पूरा स्कूल मेरे नाम होगा ना, ये लड़के कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है, पूरा स्कूल में नाम। प्रिंसिपल आपसे बात करेंगे, आपको शायद मॉनिटर भी बना देंगे, बन अगर बन गए हैं तो ठीक है, और बना देंगे तो और बिलीव आ जाएगा, वाह, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना समझाना बात करना आपको आ जाएगा। तो क्या होगा जब जब प्रोग्राम होगा, जब जब कंपटीशन होगा, मुझे लगता है कैप्टन में आपका नाम ही होगा, क्योंकि जो टैलेंट होता है, जो ब्रिलियंट होता है, उसका नाम ज्यादा होता है। और आज के दौर पे भले इंसान के अंदर में कितना भी टैलेंट हो, अगर उसको इंग्लिश आता है ना, उसको टैलेंट ही माना जाता है। हर गाड़ी इंग्लिश आता है ना, उसको टैलेंट ही माना जाता है। अंदर में फीलिंग आनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए यार अमित सर जो बताए हैं, अगर उतना ही मैं पढ़ के जाऊंगा तो फिर मैं क्या सीखा? कुछ नहीं। तो जो अमित सर बताए उसके अलावा भी आपको बनाना है। व्हाट अमित सर हैज टोल्ड यू, इफ यू आर डूइंग लाइक दैट ओनली, इट मीन्स यू डिडंट लर्न। आप नहीं सीखे, आप कुछ नहीं सीखे। हमारे गुरुजी की जो आप हमसे सीखे, जिस तरह मैंने बोला, विच वे आई सेड, इफ यू आर सेइंग सेम वे, यू डिडंट लर्न यट। जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप भी उसी तरीके से बता रहे हो, आप नहीं सीखे। क्योंकि आप तो क्या किए, जैसे मैंने बोला, जो जो वर्ड मैंने बोला उसको आपने याद किया, रट्टा मारा, और सेम वर्ड को आपने दोहरा, मतलब आपने नहीं सीखा। मैंने बोला 1+1 2 होता है, 2+2 4 होता है, ठीक है। तो मैंने जो बोला 2+2 4 होता है, तो आपने उसी को याद किया। आपने मैंने बोला जी भाई बताइए 4 कितने में प्लस किया जाए, तो सर 2+2 4 होता है सर, जैसे कि आपने बताया 2+2 4 होता है। तो ये आप नहीं सीखे, क्योंकि आपने मेरी बात को रिपीटेशन कर दिया। आप ये भी बोल सकते हैं सर 1+1+1+1 = 4, है कि नहीं? तो ये हो गया, आप अपने दिमाग लगाए और आपका दिमाग ऐसे तेज होता है। वो तो मैंने बताया 3+1 भी 4 होता है, समझ लो, ये भी 4 होता है। तो ये आपको जो मैंने बोला डू यू स्टडी, आपने भी वही लिख के डू यू स्टडी। अरे डू यू गो कौन लिखेगा, है कि नहीं? डू यू स्टैंड कौन लिखेगा? ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया, आप पढ़ते हो, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, घर में कौन करेगा?
यस, आप यहाँ मैंने जो करवाया आप उतना ही कर रहे हो, उतना ही आपने किया। इट मीन्स आप नहीं सीखे, जीरो सीखे, जीरो। समझ में आ रहा है? अगर आपने एक कहानी पढ़ा, एक दिन की बात, एक कौवा प्यासी थी। वह एक दिन जंगल पे भटक रही थी। वैसे मैंने बताया तो आप भी ऐसे को रिपीट करें। एक दिन की बात है, एक कौवा प्यासी थी, वह जंगल में भटक रही थी। आप नहीं सीखे, आप नहीं सीखे। अगर आप सीखते तब मेरे वॉइस को आप रिपीट नहीं करते। आप क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान अपने आप में एक हीरो है, हर इंसान अपने आप में बहुत बड़ा बरगद है, हर बीज अपने आप में बहुत बड़ा पेड़ होता है। यस, आपके पास अपना हुनर है, इनके पास अपना हुनर है, मेरे पास अपना हुनर है। यस, आपके पास अपना हुनर है। आप मेरे जैसा कभी नहीं बन सकते। और अगर आपने सोचा कि अमित सर की तरह बनूंगा मैं, तो आप कभी भी मुझसे आगे नहीं जा सकते। यस, अगर आपने सोचा कि मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगी, तो कभी इनसे आगे नहीं जा सकते। इनसे आगे जाना है तो आपको ये विचार छोड़ना पड़ेगा कि मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। आपको ये विचार लाना पड़ेगा कि मुझे अपना रास्ता बना। आर यू गेटिंग इट नो? क्योंकि जो इंसान अपना रास्ता बनाता है ना, तो पीछे ऐसे करके चलता है आदमी। अब जो आदमी बहुत बिंदास होते तो ऐसे हाथ पैर फैला के सोता है। इट मीन्स वो अपना रास्ता पीछे से बंद करते हुए आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे है नहीं? तो आपको कोई आदमी उनसे आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आपको उनसे आगे बढ़ना है, इट मीन्स आपको अपना रास्ता किसी और गली से आगे निकालना है। समझ में आ रहा है? अगर मान लिया सर मैं 3 नंबर से रेस लगाया चोपड़ा मोड़ की ओर, ठीक है, हम तीनों ने रेस लगाया कि कौन आगे होगा। और उस रास्ता में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। मान के चलते हैं रास्ता छोटा है, गली है, और उस रास्ते में एक ही आदमी जा सकता है। समझ में आ रहा है? और आप भी अगर मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हो, तो कभी आप चौपड़ा मोड़ मुझसे आगे पहुंच ही नहीं सकते। अगर आपको पहुंचना है मुझसे आगे, तो आपको किसी गली खोजना पड़ेगा और उस गली से मुझसे आगे निकालना पड़ेगा। क्योंकि रास्ता तो मैंने टेका हुआ है ना, आगे कैसे जाओगे? हाँ, मैं जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा पीछे रास्ता खाली होते जाएगा, तो वो खाली रास्ता में आप आ सकते हो, बट मुझसे आगे नहीं जा सकते। आगे बढ़ेंगे ऐसे। I'm not saying that I'm champion of the English. You can also become champion of English. आप मुझसे बेटर इंग्लिश बोल सकते हो, मुझसे बेटर इंग्लिश से बात कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने जो फॉर्मूला अपना है वो तो आपको अपनाना पड़ेगा मेरे लेवल तक आने के लिए। मेरे से ज्यादा करने के लिए मैंने जो अभी तक नहीं किया होगा, शायद मैंने वो फार्मूला ढूंढा नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना कि आविष्कार तब होता है जब लोगों से अलग कुछ किया जाता है। अगर आप सेम चीज दोहरा रहे हो तो आप आविष्कार नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग स्लो? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? यस। मेरा क्लास में आप एक चीज करते हो और वो मात्र है एक्शन। क्या एक्शन किसको बोलते हैं? एक्शन का मतलब काम, काम करो। एक्शन करो का मतलब एक्शन पे आ जाओ, काम पे आ जाओ, एक्शन टेकर बनिए ना। एक्शन टेकर किसको बोलते हैं? एक्शन टेकर किसको बोलते हैं?